कैसे हमें पता चले कि हम अपने कानों की गुड केयर कर रहे हैं, राइट? एंड ऐसे तो नहीं है कि हम एक्सीडेंटली उनको हार्म कर रहे हैं। गुड केयर की असली डेफिनेशन होती है कि मैं बहुत तेज़ आवाज़ को बहुत देर तक नहीं सुन रहा हूँ, बहुत शोर वाली जगह पे नहीं हूँ। मैं कैसे हियरिंग प्रोटेक्शन कर सकता हूँ? तो मुझे लगता है अगर मैंने क्यू टिप से कान साफ कर लिया तो मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है आज। जैसे क्यू टिप से कान साफ करना वो एक मिथ है। आप ट्यूब के अंदर कुछ डाल रहे हो तो चीज़ को आप अंदर की तरफ धक्का दे रहे हो, उसको बाहर तो नहीं निकाल रहे हो। तो वो ईयर ड्रम को क्यू टिप टच कर सकती है, ईयर ड्रम फट सकती है। तो ये जो ओवर द काउंटर हियरिंग एड्स हैं ये ऐसे नहीं खरीदे जा सकते, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं रीडिंग ग्लासेस के मुकाबले में। माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस के लिए ओवर द काउंटर हियरिंग एड आए ही क्यों? एक मेडिकल डिवाइस ओवर द काउंटर ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है ग्लासेस डोलरामा में भी हैं, बट कितने लोग ले रहे हैं? वो वैसे वाला है। लेकिन जे ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ पेनफुल होगा। काफ़ी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट होता है, ओवरऑल 20-30 मिनट्स में टेस्ट हो जाता है। जनरली एक साइड में होता है कि एक कान एकदम से बंद हो गया। कई बार कहते हैं भी कान 'ਚ घंटियां जियां ਵੱਜਣ ਲੱਗ। तो अगर साइनसेस हो रहे हैं, नाक में कुछ इरिटेशन हो रहा है, उस ट्यूब के थ्रू वो कान को भी थोड़ा बंद कर सकता है। फ्लाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ अक्सर कान बंद हो जाते हैं या कानों में दर्द शुरू हो जाता है, हाई एलिवेशन है ना, कान का पर्दा थोड़ा फट गया है, पानी बार बार इकट्ठा हो रहा है, बाहर आ रहा है कि हम अपने कानों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम हेडफोन्स लगा रहे हैं, हम एयरपॉड्स लगा रहे हैं, और कई तो हमारी जो यंग जनरेशन है या बहुत से लोग हैं कि ऑल द टाइम एयरपॉड्स उनके कानों में लगा ही हुआ है। तो मान लो मेरा आईफोन है, वो 10 वॉल्यूम मैक्सिमम दे रहा है, मैं 6 तक ही सुनता हूँ, ठीक है, 7, 8, 9, 10 पे नहीं जाता। तो मतलब मैं बहुत लाउड नहीं सुन रहा हूँ, कि हर 60 मिनट्स में मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੈਸਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ, ਮੰਥ, ਈਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ 90% ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਅਰਬਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਅਰਬਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਡਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਡਫੋਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੂਨ 17 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਡੇਲੀ ਹੈਬਿਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਸੈਪਰੇਟ ਫੈਕਟ ਫਰੋਮ ਫਿਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਆਡੀਓਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਬੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਆਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਆਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰੇਮਨ ਐਂਡ ਟਿਨੀਟਸ ਰੀਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਸੋਹਣੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼, ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾत कर सकते हैं, यू कैन यूज़ एनी लैंग्वेज। कैसे हमें पता चले कि हम अपने कानों की गुड केयर कर रहे हैं, राइट? एंड ऐसे तो नहीं है कि हम एक्सीडेंटली उनको हार्म कर रहे हैं। हमारी डेफिनेशन क्या है पहले तो गुड केयर की, राइट? अगर मोस्ट आप डेफिनेशन देखोगे क्या है गुड, टेकिंग गुड केयर इज लाइक टेकिंग अ क्यू-टिप एंड क्लीनिंग योर ईयर, राइट? अब वो गुड केयर नहीं है, राइट? तो अगर वो कर रहे हो तो वो हार्मफुल हो सकता है। गुड केयर की असली डेफिनेशन होती है कि मैं बहुत तेज़ आवाज़ को बहुत देर तक नहीं सुन रहा हूँ, बहुत शोर वाली जगह पे नहीं हूँ, मैं कैसे हियरिंग प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। तो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं कि आप किस चीज़ को किस तरह से देख रहे हो, क्या चीज़ एक्चुअल डेफिनेशन है टेकिंग गुड केयर और क्या चीज़ मिथ है। जैसे क्यू-टिप से कान साफ करना वो एक मिथ है। अगर आप सोचोगे ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों होता है, अब वहाँ पे भी नर्व्स हैं ईयर कैनाल के अंदर, तो जब हम उसको साफ करते हैं हमें थोड़ा सा एक प्लेजर फीलिंग होता है, एक स्टिमुलेशन मिलता है वहाँ पे। कभी किसी को देखोगे साफ भी करता है तो उसका एक चेहरा अलग सा हो जाता है ना, क्योंकि आपको वो अच्छा लग रहा है। दूसरा हम निकालते हैं, हमें थोड़ा सा मैल दिखती है तो हमें लगता है कि अच्छा मैंने कुछ किया, मैंने अपना कान साफ कर लिया। बट आइडली आप सोचोगे एक तरह से एक कैनाल है, एक ट्यूब है, आप ट्यूब के अंदर कुछ डाल रहे हो तो चीज़ को आप अंदर की तरफ धक्का दे रहे हो, उसको बाहर तो नहीं निकाल रहे हो। तो आइडली किसी को अगर वैक्स प्रॉब्लम है वो उसको कॉम्प्लिकेट ही कर रहा है। कान साफ करने का मतलब है अगर मैंने बाहर से कर लिया, मेरे को कैनाल साफ करने की ज़रूरत नहीं है। अफेक्ट क्या है, कई लोग पूछते हैं फिर कैनाल साफ कैसे होती है, वैक्स बाहर क्यों आती है? नेचुरली ऐसे ही बना है। जब हम बातें कर रहे हैं, हम चबाते हैं, खाते हैं, हमारी कैनाल के अंदर एक मूवमेंट होती है और नेचुरली वैक्स बाहर की तरफ आती है। उसके बाद नहाते हुए मैंने उसको आराम से ही, जैसे आपने थोड़ा सा बाहर से करते हो, कपड़े से साफ करते हो, वैक्स बाहर आ गई, मैंने साफ कर दिया। क्यू-टिप भी यूज़ कर रहा हूँ, बाहर कर ली, ठीक है, बट जैसे ही मैंने उसको पुश किया मैंने वो इक्वेशन ख़राब कर दी करके। हैविंग सेड दैट 3-4% में हो सकता है कि उनका ईयर कैनाल थोड़ा नैरो है या बहुत ही कर्वी है और उनको वैक्स इश्यूज थोड़े हो सकते हैं, बट मोस्टली में हमें इस तरह से क्लीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और देखो, आप तो इस प्रोफेशन में अब ऑलमोस्ट 15 ईयर से ज़्यादा हो डॉक्टर आकाश। बहुत से लोगों को यही होता है कि जैसे मैंने बोला कि आइज़ चेक कराने हम चले जाते हैं, हमें अपना नंबर तक पता होता है कौन से नंबर का हम चश्मा पहन रहे हैं। दांतों की क्लीनिंग एवरी 6 मंथ्स हम कराते हैं। पर जब ईयर केयर की बात आती है, जब कान साफ़ करने की बात आती है, तो मुझे लगता है अगर मैंने क्यू-टिप से कान साफ़ कर लिया तो मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है आज। अब मेरे कानों को कोई नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो क्लीन कर लिया। और क्यू-टिप मार्केट्स में ईजिली अवेलेबल हैं, आपको कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी स्टोर में जाओगे, क्यू-टिप का डब्बा उठा लोगे। तो क्यू-टिप से जो साफ़ करना है, जैसे आपने बोला है कि अगर हम बाहर से कर रहे हैं इट्स ओके, अगर हम बहुत अंदर से कर रहे हैं, और कई लोग तो बहुत घुमा के उसको साफ़ करते हैं कि जब तक वो, कई बार तो मैंने ये भी लोगों को करते हुए देखा है डॉक्टर कि इतनी क्यू-टिप्स वो यूज़ करते हैं कि जब तक वो क्लीन होके बाहर ना आने लगे उन्होंने अंदर तक उसको घुमाते ही रहना है। वो डेंजरस हो सकता है जी। दो चीज़ें हैं, आइडली तो उन लोगों को बहुत वैक्स है ही नहीं अगर वो इतना घुमा पा रहे हैं तो, राइट, क्योंकि वैक्स भी अड़ने लग जाएगी। दूसरा डेंजरस बहुत है क्योंकि ईयर कैनाल है और लास्ट में उसके ईयर ड्रम है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं साफ कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं आगे चला गया
तो वो ईयर ड्रम को क्यू टिप टच कर सकती है, ईयर ड्रम फट सकती है। बहुत पेशेंट्स होते भी हैं अच्छा। जो आप देखते हैं अर्जेंट केयर में जाते हैं करके पेन के साथ, क्योंकि दे वर क्लीनिंग द ईयर, समटाइम्स यू डोंट नो हाउ डीप टू गो, राइट, वो प्रॉब्लम है। और कई बार ऐसे है कि साफ करते हुए मजा आ रहा है और थोड़ा सा और डीप चला गया, या कान बंद लग रहा है और लग रहा है नहीं थोड़ा और अंदर जाऊंगा तो पूरा साफ हो जाएगा, और उस थोड़े के चक्कर में ईयर ड्रम को टच हो गया और ईयर ड्रम रप्चर हो जाती है, फट जाती है करके, फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं ऐसी चीजों में। ऐसे केसेस होते हैं कि जब क्यू टिप से साफ करते जो ड्रम है उसको डैमेज पहुंच जाता। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਈ गेम चेंजर है या लोगों को पहला ऑडियोलॉजिस्ट को जाना पड़ेगा या पहले ही वो जाकर कैसे खरीदें? जैसे मैं जाऊँ, अब मुझे पता है कि ओवर द काउंटर ले सकते हैं, तो क्या लेना है, कैसे लेना है, लाइक इसके बारे में अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकें। ओवर द काउंटर थोड़ा लाइक डिबेटेबल टॉपिक होता है कि इज इट हेल्पफुल और इज इट मोर कंफ्यूजिंग, राइट? तो डेफिनेशन वाइज ओवर द काउंटर कोई भी 18+ जिसको हियरिंग प्रॉब्लम लग रही है वो खरीद सकता है। ओवर द काउंटर मतलब ऑनलाइन हियरिंग एड्स होंगे, FDA अप्रूव्ड होंगे, या फिर किसी रिटेल स्टोर पे भी ले सकते हैं। बट आइडली ओवर द काउंटर हियरिंग एड बने किन के लिए? वो उन लोगों के लिए बने हैं जिनको माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस होता है। तो अगर आप पेपर को और पढ़ोगे तो उसमें है एनीवन हु इज 18+ हैव अ माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस। अब पता कैसे चलेगा माइल्ड टू मॉडरेट है? देन यू हैव टू गो टू द ऑडियोलॉजिस्ट। तो ऑफ कोर्स पहले टेस्ट होना, हियरिंग चेकअप होना, डायग्नोस्टिक होना ज़रूरी है जी, ताकि पता हो माइल्ड टू मॉडरेट है, तब भी आपके लिए सुटेबल है। आपने लिया, आपको फिर कंफ्यूजन है, तब भी आप हेल्प वापस ऑडियोलॉजिस्ट से ले सकते हो। तो ऑडियोलॉजिस्ट स्टिल रिमेन्स अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट, मतलब उस पूरे पिक्चर में चेकअप तो कराना ही पड़ेगा। अब माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस के लिए ओवर द काउंटर हियरिंग एड आए ही क्यों? एक मेडिकल डिवाइस ओवर द काउंटर ऐसा क्यों हुआ? पहले समझना होगा माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस क्या है। रफली जैसे मैं बता सकता हूँ, थोड़ा नंबर की बात करेंगे इसमें, और नंबर को आप वॉल्यूम की तरह समझो। तो 25 जो नंबर होता है 25 वहां तक वॉल्यूम में हम सुनते हैं तो नॉर्मल है। अच्छा। माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग प्रॉब्लम होती है जब वॉल्यूम 26 से 50 तक हो रहा है, रफली ऐसा सोच लो। हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम 60-65 पे, ओके? हम 60-65 पे बात करते हैं, माइल्ड मॉडरेट 50 से नीचे नीचे है। उसका मतलब है माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस वाले वो लोग हैं जिनको नॉर्मल 1-to-1 बात करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस वो ग्रुप है जो एक्शन नहीं ले रहा था, जो वेट एंड वॉच कर रहा था कि नहीं अभी हियरिंग प्रॉब्लम है बट इतनी नहीं है, मैं वेट करता हूँ, अभी तो काम चल रहा है। ठीक है। तो आइडली में ओवर द काउंटर हियरिंग एड्स उन लोगों को हेल्प नहीं कर रहे हैं जिनको असली में जरूरत है। हाँ। उनके लिए ये सिर्फ ये एक जो होता है ना कार्ड है, हाँ, कि हाँ ओवर द काउंटर ले सकते हो करके, बट उनको हेल्प नहीं मिल रही है। जिसको असली में हियरिंग एड की जरूरत लग रही है उसको हेल्प नहीं मिल रही है। माइल्ड टू मॉडरेट वो ग्रुप है जो बोल रहा है कि नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है, या वो एक्शन ओरिएंटेड ही नहीं है अभी क्योंकि उसको प्रॉब्लम इतनी लग ही नहीं रही है। हाँ। तो उस ग्रुप को हेल्प करने के लिए भी कि भाई डोंट वेट, टेक द एक्शन। आपको ऑडियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, आपको लग रहा है कि नहीं हियरिंग एड थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है, बट डिले मत करो, तब भी हियरिंग एड ले लो। अगर आप देखोगे ओवर द हियरिंग एड काउंटर यूएस में 2022 में ही लॉन्च हो गए थे। अच्छा जी। बट आज तक उनका मार्केट शेयर 1-2% है, क्योंकि जा नहीं रहे लोग लेने के लिए जा ही नहीं रहे, क्योंकि जब उनको लेने की जरूरत है तब सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस हो चुका है, वो माइल्ड टू मॉडरेट से क्रॉस कर चुका है, और अब उनको ऑडियोलॉजिस्ट से ही लेने हैं। तो ऐसा है, ये ऐसा हो गया जैसे प्रिस्क्रिप्टिव हो सकता है ग्लासेस डोलोरामा में भी हैं, बट कितने लोग ले रहे हैं, वो वैसे वाला है। तो एक पिक्चर दिखाने के लिए लगता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब हियरिंग एड आप ओवर द काउंटर ले सकते हो, बट एक कोई बड़ी चीज फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहा है,
लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचोगे कि जब सब लोग बहुत एजुकेटेड हैं, अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, माइल्ड प्रॉब्लम होते हुए भी एक्शन ले रहे हैं, देन इट्स अ यूजफुल पीस इन कंप्लीट पिक्चर. बट इज इट द कंप्लीट पिक्चर? नो. मैंने आपसे यही पूछना था नेक्स्ट. आपने रीडिंग ग्लासेस की बात की कि जैसे कोई भी इंसान जाता है, उसको लगता है मेरा थोड़ा सा नंबर चेंज हो रहा है, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली ग्लासेस हर स्टोर पे पड़ी हैं, हम जाते हैं वो रीडिंग ग्लासेस ले आते हैं. तो ये जो ओवर द काउंटर हियरिंग एड्स हैं, ये ऐसे नहीं खरीदे जा सकते, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं रीडिंग ग्लासेस के मुकाबले में. ऑफ कोर्स हियरिंग अपने में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है ओवरऑल. उसमें अगर आप जो ये होंगे भी वो माइल्ड टू मॉडरेट के लिए होंगे. तो अगर किसी ने टेस्ट कराया माइल्ड टू मॉडरेट है और उसको लगता है नहीं मेरे लिए ऑप्शन है अभी, तो ऑप्शन है तो ले सकता है. बट अब कोई है उसके मॉडरेट अलग अलग लॉस होते हैं, सीवियर होते हैं, मॉडरेटली सीवियर होता है, और उसको लग रहा है नहीं यही लेके देख लेता हूँ, उसके लिए पैसे वेस्ट हो गए, है ना. उसको ऐसा हुआ कि उसने लगाया, थोड़ा फर्क तो लगा, बट असली चीज अभी भी आपने ट्राई नहीं करी करके. तो अगर जिसको असली में जरूरत है उसके लिए वो पैसे वेस्ट हैं, तो ये डिबेटेबल हो गया कि वो हेल्प तो कर नहीं रहा है. और जो लोग एक्शन ओरिएंटेड अभी नहीं है, वेट एंड वॉच कर रहे हैं करके, उनके लिए वो लॉन्ग रन में हेल्पफुल होगा. जो जैसे माइंडसेट चेंज होता है ना, अभी तो जैसे आप बोल रहे हो कि, और हम बात कर रहे हैं कि कितने लोगों को ईयर्स के बारे में इतनी बात ही नहीं होती है. अब जब वो बातें बढ़ेंगी तो ओवर टाइम उसका फायदा होगा. बिल्कुल. लोगों को हमने अब एक डिस्कशन हमने ओपन कर दी कि भाई कानों की सेहत भी जरूरी है, राइट. पर कितने लोग हैं जो जाएंगे, क्योंकि मन में एक डर होता है कि जाएंगे, क्या किस तरह के टेस्ट होते हैं लोगों को पता ही नहीं है. आइज का तो लोगों को पता है क्या टेस्ट होते हैं, ब्लड वर्क का पता है, जाना है ब्लड दे देना है, आपकी रिपोर्ट आ जानी है. लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि अगर हमें अपने कान चेक करवाने हैं तो किस तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, होता क्या है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. लेकिन जे अज आप सोचिए भी ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ पेनफुल होगा. सो ਉਹਦੇ बारे डॉक्टर आकाश जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਦੱਸ सको, जब पेशेंट आपके पास आता है, पहले तो कब आता है वो, अगर उसको सच में लगता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कान में कोई पेन है, कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, जब वो आपके पास आते हैं तो क्या होता है, कैसे टेस्ट होते हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में इंक्लूडिंग मी हमें पता ही नहीं कि आप लोग करते क्या हो, टेस्ट किस तरह के अवेलेबल हैं, क्या वो पेनफुल होते हैं, ब्लड देना होता क्या है जी. हियरिंग टेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई नॉन इन्वेसिव होता है, कुछ नीडल नहीं है, कुछ ब्लड नहीं है, कुछ लैब वर्क नहीं है उस हिसाब से. हियरिंग टेस्ट में होता है, पहले ऑडियोलॉजिस्ट आपको कान को देखता है एक लाइट के साथ, ओवरऑल की कोई वैक्स तो नहीं है. उसके बाद कुछ ऑटोमेटिक टेस्ट होते हैं, हम देखते हैं ईयर ड्रम, कान का पर्दा कैसे मूव कर रहा है, कुछ बोन्स हैं कान में वो कैसे मूव कर रही है. ये टेस्ट हमें अपनी हियरिंग नर्व, फेशियल नर्व, इन सब का भी आइडिया देता है कि पूरा सिस्टम अंदर वर्क कैसे कर रहा है. उसके बाद टेस्ट होता है जहाँ पे हेडफोन्स लगाए जाते हैं और एक बटन होता है. इंसान जब साउंड को सुन रहा है तब उसको सिर्फ बटन दबाना है. अच्छा, इतना है. तो हम चेक कर सकते हैं कि कितना कम से कम वो सुन पा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो सुन रहे हैं तो वो बटन दबा रहे हैं. और इसके थ्रू एक पूरा ऑडियोग्राम होता है, हियरिंग ग्राफ होता है, उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें उनको कुछ वर्ड्स रिपीट करने होते हैं, ताकि हम देखते हैं कि ब्रेन कैसे वर्ड्स को समझ के रिपीट कर रहा है वापस से. तो कुछ नॉन इन्वेसिव नहीं है, काफ़ी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट होता है. ओवरऑल 20-30 मिनट्स में टेस्ट हो जाता है. अदर देन केस हिस्ट्री, काउंसलिंग, वो अलग टाइम है. मेनली ये होता है. टेस्ट कराने के लिए सबके अपने अपने रीजंस होते हैं. कई बार कुछ कान में पेन है, कान में ब्लॉकेज हो रही है, हियरिंग चेंज हो गई है. एक टिनिटस बहुत कॉमन रीज़न होता है कि कान में कुछ आवाज़ आ रही है ना. और कई बार सडन चेंज इन हियरिंग हो सकता है कि कल तक सब ठीक था और कुछ घंटों में एकदम से मुझे लग रहा है मेरा कान बंद हो गया, राइट. तो जिस तरह से बोलते हैं हियरिंग लॉस कैन हैपन एट एनी एज. बच्चे से लेके एडल्ट से लेके बड़े में किसी में भी हो सकता है. और एक हियरिंग लॉस होता है जिसको हम सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं. इट कैन हैपन एट एनी एज. एकदम से जनरली एक साइड में होता है कि एक कान एकदम से बंद हो गया और उसमें कुछ शोर आ रहा है, कुछ टिनिटस आ रहा है, अलग अलग रीजंस होते हैं. अब जो आपने ये टिनिटस
टर्म यूज़ की है, इसको अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो शायद इस अगर इफ़ आप बता सकते हो इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, कई बार कहते हैं भी कान 'ਚ घंटियां जियां वजन लग गई, बिल्कुल बिल्कुल। ये वही चीज़ होती है। हाँ, मतलब अलग अलग तरह का होता है, किसी को हिसिंग साउंड लगता है, किसी को रिंगिंग साउंड लगता है, अलग अलग तरह का आवाज़ हो सकती है। बट यस कि क्यों होता है डॉक्टर ये? एनवायरनमेंट में साउंड नहीं है बट मुझे साउंड हाँ, सुनाई दे sound रहा सुनाई है दे ना, रही है, वैसा yes. है करके होता। टिनाइटस इज कॉमन बट एकदम से नॉर्मल नहीं है, ठीक है, Okay. कॉमन है। लेकिन अगर वो आया और एकदम से थोड़े टाइम में चला गया, इट्स ओके, इट्स कॉमन, इट कैन ठीक है, हैपन, ठीक है। राइट। बट अगर रिपीटेटिव हो रहा है तो रीजंस हो सकते हैं। अगर लाउड नॉइस एक्सपोजर है, कई बार हो सकता है मैं गेम नाइट में था और मुझे नेक्स्ट डे लगा मेरे कान से कुछ आवाज आई, okay. मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्पररी होके वो चला जाता है। बट अगर टिनाइटस मोर देन फ्यू डेज स्टे कर रहा है, इरिटेशन लग रहा है, एक कान में आ रहा है, पल्स जैसा साउंड हो रहा है, तो हमें और इन्वेस्टिगेट करना होता है कि क्या हो रहा है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो टिनाइटस बता रहा है कि कान में कुछ हो रहा है। वो प्रॉब्लम है कि नहीं, वो अलग अलग चीजें हैं। कई बार हो सकता है मैं बहुत शोर वाली जगह पे गया, कान ने बहुत काम किया, अब कान थका हुआ है तो मुझे थोड़ा सा टिनाइटस आया, बट कुछ डैमेज नहीं है, वो आके चला गया, वो टेम्पररी है, दैट्स व्हाई इट्स कॉमन। बट अगर थोड़ा कुछ डैमेजिंग हो गया तो वो थोड़ा परमानेंट हो सकता है, बॉदरसम हो सकता है, फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि क्या डैमेज है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। आपके जब हम आपका बायो देख रहे थे डॉक्टर, उसमें सेरेमन इफ आई एम सेइंग इट it's wax. करेक्टली, व्हाट इज दैट? सेरेमिन इज लाइक वैक्स, Okay. जो ईयर वैक्स होता है उसको सेरेमिन मैनेजमेंट अच्छा, पे बोलते हैं, जो okay. कान से जो आता है। वो भी डिपेंड करता है, कईयों में ज्यादा बनता है, कईयों में बिल्कुल कम बनता है। बिल्कुल। हमें एक क्वेश्चन भी आया है कि नवदीप विर्क हैं ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है कि कहते साइनस इन्फेक्शन, ईयर पेन के बारे में इनका सवाल है, कहते हैं ये क्यों होती है और इसका क्या सॉल्यूशन है? ये क्वेश्चन ज्यादा ईएनटी रिलेटेड है, तो ऑडियोलॉजिस्ट बहुत साइड टू साइड साथ में वर्क करते हैं ईएनटीज के। मैं इसमें ऐसे टेस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे मैं देख सकता हूँ ईयर इन्वॉल्व कितना हो रहा ठीक है। और ईयर ट्रीटमेंट कितना चाहिए, और वो रिजल्ट्स हम ईएनटीज को भेजते हैं। बट क्यों होता है, मैं थोड़ा सा उसका आंसर दे देता हूँ। साइनस नाक और यहाँ से रिलेटेड हो गया, जो आपका पैसेज बंद है। अब एक ट्यूब होती है जो नाक और कान को कनेक्ट कर रही होती है। तो अगर साइनसेस हो रहे हैं, नाक में कुछ इरिटेशन हो रहा है, उस ट्यूब के थ्रू वो कान को भी थोड़ा बंद कर सकता है। उसके कारण पेन होती है कई बार। अगर ज्यादा कान बंद हो जाए तो कान बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, इवन कान में पानी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, काफी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो वहां पे एक लिंक है, बट उसको ट्रीटमेंट प्लान इज द ईएनटी डॉक्टर। वहां पे आपको फैमिली डॉक्टर से ईएनटी रेफरल उस राउट पे जाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं जो हियरिंग लॉस है, क्या ये किसी एज में भी हो सकता है, या ये मिथ है कि ये तो सीनियर्स को ही होता है, हियरिंग लॉस जो है सिर्फ सीनियर्स को हो सकता है? हियरिंग लॉस किसी भी एज पे हो सकता है। ऑफ कोर्स इट गेट्स मोर कॉमन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्योंकि हियरिंग ग्रेजुअली चेंज होती रहती है। बट हियरिंग लॉस के बहुत रीजंस हैं। जेनेटिक हियरिंग लॉस हो सकता है, जन्म से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया सडन हियरिंग लॉस हो सकता है, एकदम से हो गया, वो किसी एज में हो सकता है। मेडिकेशंस के कारण कई बार हियरिंग लॉस होता है। किसी को हाई फीवर है बट ऐसी मेडिकेशन देनी पड़ी जो लाइफ सेविंग है, बट हियरिंग चेंजेस हुए। जिनको कोई किडनी इश्यूज हो, कई बार ऐसी मेडिकेशंस होती हैं। कैंसर ट्रीटमेंट हो, है ना, बहुत सारे ट्रीटमेंट के कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है। इन्फेक्शंस हैं बहुत सारे जो हियरिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो रीजंस बहुत सारे हैं, दैट्स व्हाई इट कैन हैपन एट एनी एज। एक और सवाल हमें आया, ये पूछ रहे हैं कि कोई अर्ली साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमें कोई कानों की प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के? मतलब आगे चल के हो सकती है अर्ली साइंस, टिनिटस कि बार बार आपके अगर कान में कुछ आवाज आ रही है, अर्ली साइन है। जब हियरिंग लॉस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है करके, तो बहुत अर्ली साइंस जब हियरिंग लॉस स्टार्ट हो गया है तब होते हैं करके। जैसे एक होता है कि लास्ट टाइम कब ऐसा था कि किसी ने बोर्ड पे वो एप्पल काट रहे थे, मुझे वो आवाज सुनाई दी, हम ध्यान भी नहीं देते वो कब चली गई सुनना हमें, राइट। वो बहुत शुरू के होते हैं। अर्ली साइंस हैं, बहुत अर्ली साइन में बोलूँगा कि अभी मैं पार्टी से आया और मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, कि मुझे शोर में बातें करते हुए बहुत स्ट्रेन देना पड़ा करके।
जब मैं अपने 15-20s में था, स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ, तब फिजिकल स्ट्रेन होता होगा, मेंटल स्ट्रेन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम इतना कुछ कर रहे थे कि वैसे थक गए। बट अभी वो मेंटल स्ट्रेन लगता है। क्यों मेंटल स्ट्रेन हो रहा है? क्योंकि ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, अगर थोड़ा माइल्ड हियरिंग लॉस भी शुरू हो गया है करके। तो अर्ली साइंस ऐसे होते हैं। कई बार होता है कि अभी मैं टीवी 12 पे ही सुन रहा था, अब मेरे को 14-15 पे अच्छा लग रहा है। और अर्ली साइंस होते हैं जो हमें भी नहीं पता चलते, घर वालों को पता चलते हैं कि मैं ते ए नहीं किया सी, मैं ते ए किया सी, या मैं काइंड नहीं किया, मैं ते माइंड किया सी, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ करके। फ्लाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ अक्सर कान बंद हो जाते हैं या कानों में दर्द शुरू हो जाता है, हाई एलिवेशन है ना, क्या रीजन होता है, कैसे बचा जा सकता है? पहला क्वेश्चन है कि क्यों होता है, क्या होता है, राइट? होता क्या है, हमारे कान के अंदर भी एक प्रेशर है जो बाहर के प्रेशर से सेम होना चाहिए, ताकि हमें कोई पेन ना हो, कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, और आवाज़ बहुत आराम से सफाई से अंदर जाए और हमें सुनाई दे। तो प्रेशर सेम होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे गए या फिर हम फ्लाइट में हैं, तो बाहर का प्रेशर चेंज होता है, बाहर का प्रेशर उस टाइम कम हो जाता है। अब जब बाहर का प्रेशर कम हो गया है तो अंदर के प्रेशर को भी थोड़ा सा कम होना है ताकि वो इक्वल हो जाए। तो फिनोमेना है प्रेशर इक्वलाइजेशन। जैसे कई बार होता है ना, घर का कोई एक कमरा खुलता है और दूसरे कमरे में से ठक की आवाज होती है, वो प्रेशर इक्वलाइज हो रहा है, राइट? वैसे ही कान में भी एक प्रेशर इक्वलाइज हो रहा है। प्रेशर इक्वलाइज कर कौन रहा है? एक ट्यूब है जो हमारी नोज से कनेक्टेड है और नाक से हम सांस ले रहे हैं, सब हो रहा है। तो वो जो ट्यूब है वो ध्यान रख रही है प्रेशर इक्वलाइजेशन में। अगर उस ट्यूब में थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट है, उस ट्यूब में कुछ इरिटेशन है, तो प्रेशर इक्वलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। जब प्रेशर इक्वलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो पेन हो रहा है, तो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि प्रेशर मिसमैच हुआ। अब हमारी ईयर ड्रम आप एक सोच लो, एक बलून की तरह सोच लो, एक ईयर ड्रम है, बाहर प्रेशर कम हो गया, अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो उसको दबाएगी बाहर की तरफ, तो डिस्कम्फर्ट होगा, राइट? मुझे कान में ब्लॉकिंग की फीलिंग लगेगी, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग लगेगी। अब इसमें मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ? जो ट्यूब है, ट्यूब के आसपास कुछ मसल्स हैं जो हेल्प करते हैं उसको खुलने बंद में। वो मसल्स को मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। कैसे? कई लोग जॉ मूवमेंट करते हैं, मुंह खोलते हैं, चूइंग करके, कि कुछ आपने च्यूगम रख ली, आप पानी पी रहे हो, उन जिससे भी जॉ मूवमेंट हो रहा है वो उस मसल को थोड़ा खोलने में हेल्प कर रहा है। अब सबको प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आप देखोगे कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयर टू अदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर किसी को सीजनल एलर्जीज रहते हैं, थोड़े साइनसेस रहते हैं, तो उनका नेजल पैसेज थोड़ा सा इरिटेटेड होता है, ठीक है, तो ट्यूब में भी थोड़ा इरिटेशन हो सकता है। तो प्रेशर इक्वलाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज ला सकता है, तो आपको लगेगा कि ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। उसमें नेजल स्प्रेज हेल्प करते हैं। जनरली आप फैमिली डॉक्टर से बात कर सकते हो, ENT डॉक्टर से बात कर सकते हो। फ्लाइट के टाइम में इट्स गुड टू कीप बिफोर लैंडिंग, या उस टाइम आप उसको अगर आपने थोड़ा सा स्प्रे किया, वो पैसेज को थोड़ा रिलीज करता है, हेल्प करता है, तो ओवरऑल प्रेशर इक्वलाइजेशन बेटर होता है, डिस्कम्फर्ट कम होता है। आप देखोगे अगर किसी को जुकाम है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फ्लाइट्स के टाइम में कंपेयर टू किसी को जुकाम नहीं है करके। पर जैसे आपने बोला ना, क्योंकि जब वो दर्द होता है, क्योंकि मुझे भी होता है, ठीक है, जब वो दर्द होता है तब तो लगता है कि यही सबसे वर्स्ट दर्द है, और गम भी खा लो, पानी भी पी लो, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो कुछ जो नेजल स्प्रेज है वो इससे रिलीफ दे सकते हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन भी अवेलेबल है? मेनली आप जो प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए नेजल स्प्रे से हेल्प ले रहे हो करके, अगर ऑफ कोर्स पेन बहुत ज़्यादा है और उस आइडली वो पेन रिलीज होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर चेंज होता है वो रिलीज होता है करके आपको आराम आता है। बट लेट्स से मेरी फ्लाइट हो गई पूरी, मैं घर भी आ गया और मेरा हफ्ता हो गया, मेरा कान ही नहीं खुल रहा है, और देन ऑफ कोर्स मेडिकल हेल्प फिर चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उसमें मेडिसिन चाहिए। जैसे आपने बोला कि जैसे फिर वो नीचे हम लैंड करते हैं तो कई बार वो एकदम पॉप की आवाज आती है, तो इसका मतलब ठीक है, वो खुल गया का। बिल्कुल, तो पॉपिंग, हाँ वो बिल्कुल सही है। वो माउंटेन्स में भी आती है, कई बार ट्रैकिंग में भी आती है। जस्ट दैट फ्लाइट में वो हमें ज्यादा तेज क्यों पता चलती है? क्योंकि प्रेशर चेंज ड्रास्टिक होता है। अगर मैं यहाँ से हाइकिंग कर रहा हूँ तो वो ग्रेजुअल चेंज होगा, मेरी ट्यूब अडेप्ट आराम से कर लेगी। अब मेरी ट्यूब इरिटेटेड है और मैंने एकदम से ड्रास्टिक चेंज दे दिया, वो ट्यूब के लिए बहुत मुश्किल हो गया वो प्रेशर इक्वलाइज करना। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है कि इसको प्रिवेंट नहीं हम कर सकते?
प्रिवेंटिव अगर आप चीज़ें सोच रहे हो तो जॉ मूवमेंट्स हो गया, आपका च्यूइंग बिहेवियर उस टाइम हो गया, आपके पास अगर स्प्रेज हैं उस Yes. टाइम रिलीज करने के पहले लिए ले पैसेज, सकते हैं। वो सब चीज़ें हैं करके। जी जी डॉक्टर साहब, ये ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ व्हाट इज टेनाइटस कोलेस्थीटोमा, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी? आई थिंक अलग अलग चीज़ें, दो चीज़ें पूछना पूछ चाह रहे रहे हो, हैं, राइट? हाँ जी। टिनाइटस इज टिनिटस, टिनाइटस जेड़ा अलग आपा अलग कीता नाम है, होते हाँ हैं। जी। अमेरिकन टिनाइटस, ब्रिटिश टिनिटस हो Tinnitus, जाता है, yes. लोग उसको ਉਹ इंटरचेंजेबली ਆਪਾਂ ਦੱਸ यूज ਚੁੱਕੇ कर ਹਾਂ लेते ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। एग्जैक्टली उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो कोलेस्टोमा क्या होता है, ये अब कान के अलग अलग हिस्से हैं, तो पर्दे के पीछे एक हिस्सा है। कई बार क्या होता है, उस पर्दे के पीछे के हिस्से में पानी इकट्ठा होने लग जाता हाँ है जी। और उसके कारण कान का पर्दा थोड़ा फट गया है, पानी बार बार इकट्ठा हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस। कोलेस्टोमा एक कॉम्प्लिकेशन है ऑफ रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस। अगर किसी को बार बार रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो धीरे धीरे, और अगर उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा है, राइट, तो कोलेस्टोमा तक जाना पहुंचनी नहीं चाहिए अगर अच्छे से ट्रीटमेंट पहले हो गया। बट अगर किसी को ये हो रहा है और बार उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो कई बार अब जो पस होती है, इन्फेक्शन होती है, वो होता है ना, थोड़ी थोड़ी जैसे हड्डी खाने लग जाता है करके, वो चीज़ शुरू हो जाती है, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि कान के ऊपर अगर आप सोचोगे हिस्सा, फिर हड्डी या उसके ऊपर ब्रेन का हिस्सा है, अगर उसने हड्डी को इन्फेक्टेड शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। तो कोलेस्टोमा कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है जब उसने हड्डी को परेशान करना शुरू कर दिया है। जनरली उसमें सर्जिकल ऑप्शन नहीं होते हैं, तो उसमें सर्जरी और ये सब रिकमेंड किया जाता है। तो इट्स अ कंडीशन, ईयर कंडीशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मेडिकली वैसे है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰना चाहनी है जी। आजकल जिਵੇਂ मैं स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ किया ਸੀ कि हम अपने कानों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम हेडफोन्स लगा रहे हैं, हम एयरपॉड्स लगा रहे हैं, और कई तो हमारी जो यंग जनरेशन है या बहुत से लोग हैं कि ऑल द टाइम एयरपॉड्स उनके कानों में लगा ही हुआ है, राइट? उसी पे वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उसी पे वो वीडियोज़ सुन रहे हैं, एवरीथिंग। इससे क्या हियरिंग इफेक्ट होती है जी? इसके कोई नुकसान हो सकते हैं या इज इट नॉर्मल? तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें। बिल्कुल, अगर आप देखोगे एयरपोर्ट्स या ईयरबड्स वो कल्प्रेट नहीं है, लाइक वो अकेले कुछ गुनाह नहीं कर रहे हैं। वो है कि हम एयरपोर्ट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, हम उसको कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कितने वॉल्यूम पे यूज़ कर रहे हैं। तो हाउ लाउड एंड हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन ओवर, ये इक्वेशन होती है ओवरऑल। अब जो एयरपोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर बहुत सिंपल रखना है आपको लाइफ, तो एक 60-60 रूल होता है। अच्छा जी। 60-60 रूल होता है कि जब मैं कुछ सुन रहा हूँ, जितना मेरा ऑडियो डिवाइस वॉल्यूम देता है, मैं 60% से ज़्यादा नहीं सुनता। तो मान लो मेरा आईफोन है, वो 10 वॉल्यूम मैक्सिमम दे रहा है, मैं 6 तक ही सुनता हूँ, 7, 8, 9, 10 पे नहीं जाता। तो मतलब मैं बहुत लाउड नहीं सुन रहा हूँ। दूसरा, इस 60-60 रूल में होता है कि हर 60 मिनट्स में मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। तो मैंने 60 मिनट तक अगर मैं म्यूजिक सुन रहा था, उसके बाद मैंने 2-4 मिनट का ब्रेक ले लिया, मैंने रेस्ट दे दिया। अब है क्या, हमारे कान के अंदर कुछ सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं। ठीक है। आप सोच रहे हो जब भी हम अभी भी बात कर रहे हैं, वो अंदर डांस करते हैं और सब हमारे ब्रेन में आवाज़ जा रही है। इफ़ आई एम मेकिंग देम डांस टू मच, अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं तुम नाचते ही रहो करके, या एकदम से बहुत तेज नचा देता हूँ, दोनों के कारण डैमेज हो सकता है। तो 60-60 रूल बहुत इजी है, तो यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं है, इट्स हाउ यू यूज़ इट, राइट? एक और सवाल आया जी, हमें राज सिद्धू जी हैं, बोल रहे हैं कि इनको भी कहते हैं मुझे टेनाइटिस है लेफ्ट ईयर में, पुल्स दी आवाज़ हर टाइम रहती है, ਇਹਦਾ कोई ट्रीटमेंट है? हाँ, अगर पहली चीज़ टिनाइटस और टिनिटस जब पहले शुरू हो रहा है, पहले और यूनिलैटरल है, वन साइड है, उसमें इंपॉर्टेंट है पहले तो फैमिली डॉक्टर से बात करने के लिए। कई बार दूसरी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी होती है। कई बार पल्सेटाइल टिनाइटस होता है, अगर वो पल्सेटाइल कहना चाह रहे थे, हाँ, तो कई बार आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशंस वो भी चेक करनी होती है। पल्सेटाइल में अदर मेडिकल कंडीशंस के कारण भी वो चीज़ हो सकती है। कहीं सिंगल साइड हियरिंग लॉस तो नहीं है, वो सब चीज़ें भी सिंगल साइड टिनाइटस में देखना होता है। अब वो जो बोल रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, टिनाइटस का मैनेजमेंट प्लान होता है। अगर आपको वो बॉदरसम है, उसको नॉन बॉदरसम कैसे बनाना। अगर ऐसा टिनाइटस है कि वो मेरी नींद को परेशान कर रहा है, मेरे फोकस अटेंशन को परेशान कर रहा है, तो कैसे उसको नॉन बॉदरसम बनाना कि आपको वो नींद को परेशान ना करे।
आपके फोकस अटेंशन को परेशान ना करे, वो किया जा सकता है। बट अगर किसी को लगता है नहीं मुझे टिनाइटस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ठीक कर सकते हो क्या? उसका आंसर वैसे है कि अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए मिथ होता है, लोग बोल देंगे अच्छा ये कैप्सूल खा लो ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट्स है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो टिनाइटस ट्रीटमेंट तभी होता है अगर इट्स बॉदरसम फॉर द पर्सन। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ MSP 'ਚ ਕਵਰਡ नहीं होती। जनरली आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बना सकते हो। आपके एक्सटेंडेड हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कई बार उससे हेल्प मिल जाती है। और कई बार बल्कि ऐसे होता है कि लोग प्राइवेट में आते हैं ताकि उनको जल्दी इलाज गवर्नमेंट में मिल सके। क्योंकि कई बार होता है फैमिली डॉक्टर ENT को रेफर नहीं कर रहा है, अब ये लूप कौन क्लोज करे? ठीक है। तो बंदा ऑडियोलॉजिस्ट के पास आता है, हम बताते हैं कि ये कंडीशन है, जरूरत है, फिर हम डॉक्टर को लेटर भेजते हैं। एग्जैक्टली। और हम उस पर एम्फेसिस करते हैं कि नहीं इसको तो ENT को भेजना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वी सी दिस। फैमिली डॉक्टर आपका कान का पर्दा देख सकता है, कान के पर्दे के पीछे हड्डियां भी हैं, आगे कॉक्लिया पार्ट है, हेयर सेल्स है, नर्व्स हैं, वो सब चेक हम कर पाते हैं। तो वो कई बार हम रादर मिसिंग पीस सॉल्व करके एक्सपेडाइट हो जाता है केस कई बार। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करना चाहती हूँ। आप जानते हैं अलका याग्निक एक बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे, उन्होंने अभी अभी अपने सोशल मीडिया पे ये रिवील किया है कि उनको डायग्नोज किया गया सडन न्यूरल हियरिंग लॉस के साथ। उनको कोई इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन, उसके बाद उनको सडन हियरिंग लॉस हो गई। और ये देखो कितनी शॉकिंग बात है डॉक्टर साहब कि उनका तो काम ही जो है गाना, अलका याग्निक सिंगर है, तो गाना और कान का तो कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा है। तो ये इशू क्यों, कैसे हुआ जी? क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप ब्रीफली हमें कि ऐसा भी हो सकता है एकदम से आपको कोई इन्फेक्शन हो और हियरिंग लॉस हो जाए? बिल्कुल, जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी कि हियरिंग लॉस किसी भी एज में हो सकता है, और एक सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है जो कभी किसी को भी हो सकता है। अब वो अलका जी को हुआ तो हमें उसके बारे में, क्योंकि वो अब इन्फ्लुएंसर है, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली, हमें एक नॉलेज, एक पीस पता चला। बट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोफेशन, ऐसा नहीं है कि वो गाते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा सुनने की वजह से ज़्यादा टैक्सिंग है उनके लिए, वैसा कुछ नहीं है। किसी को किसी भी टाइम जनरली वायरल इन्फेक्शन होता है जिसने कान को इम्पैक्ट कर दिया और एकदम से चेंज आ गया। ओवरऑल इम्पॉर्टेंट ये है कि एकदम से अगर मुझे लगता है मेरी हियरिंग चेंज हो गई है या एकदम से मेरे एक कान में कुछ आवाज़ आनी शुरू हो गई है, उसको इग्नोर नहीं करना। सडन हियरिंग लॉस व्हेन ट्रीटेड पहले 1 से 2 हफ्ते में रिकवरी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सडन हियरिंग लॉस अगर आप यहाँ पे भी अर्जेंट केयर में जाते हैं, उसको अर्जेंट अटेंशन दी जाती है, उसको एक्सपेडाइट किया जाता है, क्योंकि राइट ट्रीटमेंट से रिकवरी चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर वो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते की विंडो निकल गई तो रिकवरी चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो आपका न्यू नॉर्मल हो जाता है कि हियरिंग चेंज हो गई। आई थिंक अलका याग्निक जी के केस में वो चेंज हो गई है और वो वैसी ही है, राइट, वो रिकवरी नहीं है उसमें। जिन लोगों ने आज हमारी कॉन्वर्सेशन सुनी है, उनको कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहें, कोई ऐसी हैबिट जिसके साथ हम अपने कानों को हेल्दी रख सकें? एंड एनीथिंग इन क्लोजिंग? या हेल्दी रखने के लिए एक 60-60 रूल वापस से मैं वो करूँगा कि बहुत तेज़ नहीं सुने, 60% ऑफ द वॉल्यूम। हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, अगर आप बहुत शोर वाली जगह पे हैं, अगर शोर कम कर सकते हैं वो बेस्ट है। अदरवाइज मैं अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर सकता हूँ स्पीकर से, मैं अपने कान बंद कर सकता हूँ। मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं जो पता नहीं चलता है, बट शायद वो जागरण में एक दिन स्पीकर के पास बैठे हुए थे, बैक इन इंडिया दैट टाइम, और या फिर शादी में डीजे के बहुत पास थे, एंड समथिंग हैज़ चेंज, राइट। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कान साफ करने के लिए आप बाहर कान साफ करें, ईयर कैनाल में इतना जाने की जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कई बार पता नहीं चलता है, कान बाहर से तो दिख रहा है, तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ों से हम ध्यान रख सकते हैं। पर थैंक यू डॉक्टर आकाश, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है और ऐसी बातें आज हमें पता चली हैं जो सच में हमें नहीं पता थी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को भी ज़रूर पसंद आई होंगी और वो इस पे अमल भी करेंगे। आपके क्लिनिक का अगर आप एड्रेस या फ़ोन नंबर शेयर करना चाहें। क्लिनिक है हियर बेयर क्लिनिक, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी सर्विसेज होती हैं यहाँ पे। हम 15315 66 एवेन्यू पे हैं। क्लिनिक का फ़ोन नंबर है 8666312998।
वेबसाइट है hairbear.ca। बहुत आसानी से आप वेबसाइट से भी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ਓਕੇ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ਥੈਂਕ ਯੂ।